Hey guys, welcome to the channel Calibrate Physics. On this channel, you all can attempt a lot of questions, and for the ease of solving, I have divided the questions in different categories based on their difficulty levels. The first one is the beginners level question set, where you can learn simple applications of concepts. Then you can move on to the expert level question sets, where you can learn applications of concepts in tricky situations. And finally, you can move on to the champions level question sets. These are highly complex questions, and to attempt them, you need a thorough understanding of that particular topic. Also, during the later part of this video, all the questions will appear on the screen one by one, and to attempt any particular question, you can pause the video, solve that particular question, and then again play the video to move on to the next question. You can repeat this process for all the other questions as well. Later, you can also look at the answer key as well as the solutions to get a detailed understanding on how to attempt different types of questions in different situations. So guys, start practicing a lot of questions on this channel, and gradually you will definitely see a lot of improvement in the understanding of any particular topic. You can also subscribe to the channel and click on the bell icon to get regular updates. So guys, go for it, and wish you all best of luck. In this video, you all can continue solving 10 more beginners level questions on elasticity. So here are the questions. This is the answer key. Okay, so let's start discussing the solutions now. Question number 1. A wire has a density of 9 grams per centimeter cube and breaking stress of 6 into 10 to the power 9 newtons per meter square. तो डेंसिटी हमें गिवन है 9 ग्राम्स पर सीसी. इसको SI में हम 9000 kgs पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं. एंड ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस वो जो बेयर कर सकते हैं, सिग्मा मैक्स, ये 6 into 10 to the power 9 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर, ये गिवन है. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर सच दैट इट ब्रेक्स अंडर इट्स ओन वेट. तो ऐसे वायर को अगर अपन हैंग करवाते तो उसको अपने ही वेट में ब्रेक करवाने के लिए कितना लेंथ लगेगा, ये सवाल में पूछा हुआ है. ये L हमें फाइंड करना. तो ऐसे केस में सबसे मैक्सिमम टेंशन कौन से पॉइंट पे होगा? टॉप मोस्ट पॉइंट, बिकॉज ये वाले पॉइंट पे पूरे वायर का वेट आने वाला है. और टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? दिस विल बी इक्वल्स टू द वेट ऑफ द वायर, mg. सो व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस? टेंशन फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया. मास को अपन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते, और वायर का वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ होगा इनटू जी अपॉन ए. तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के टर्म्स कैंसिल हो रहे, और यहाँ से मैक्सिमम स्ट्रेस रो इनटू एल इनटू जी इसके इक्वल आ रहा है. हमारा टारगेट है ये एल निकालना, तो एल की वैल्यू सिग्मा मैक्स अपॉन रो जी इसके इक्वल आ जाएगी. सिग्मा मतलब 6 into 10 to the power 9. डेंसिटी इज 9000 kgs पर मीटर क्यूब, और g की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 मान लेते हैं. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 जीरोस है और न्यूमरेटर में 10 to the power 9. सो दिस विल बी 6 upon 9 मतलब 2/3 into 10 to the power 5. तो अप्रोक्सीमेटली 0.67 into 10 to the power 5 मीटर्स, ये आंसर आ जाएगा. Question number 2. A horizontal steel rod of diameter 5 cm projects 5 cm from the wall. तो एक वॉल से एक स्टील रॉड बाहर प्रोजेक्ट कर रहा है. स्टील रॉड का डायमीटर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और वॉल से इसका प्रोजेक्शन भी 5 सेंटीमीटर के इक्वल है. A 1000 kgs object is suspended from one end of the rod. रॉड के ये वाले एंड से 1000 kgs
मास सस्पेंड किया हुआ है। नेग्लेक्टिंग द मास ऑफ द रॉड, फाइंड द शियरिंग स्ट्रेस ऑन द रॉड। सो देखो किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे शियरिंग स्ट्रेस निकालना है, मान लो मुझे पॉइंट पी पे शियरिंग स्ट्रेस निकालना है, तो यहाँ पे मैं रॉड को दो पार्ट्स में कट कर दूंगा और इसके राइट वाले पार्ट का एफवीडी बनाऊंगा। तो राइट वाले पार्ट पे 1000 kgs की वजह से 1000 इंटू जी मतलब 10 to the power 4 न्यूटन नीचे लग रहा होगा, और इसका जो राइट वाला पार्ट है वो भी इक्विलिब्रियम पे रहने वाला है। तो लेफ्ट वाला पार्ट इस पे सरफेस के पैरेलल ये शियरिंग फोर्स अप्लाई करेगा, और ये फोर्स ये वाले फोर्स को बैलेंस करना चाहिए 10 to the power 4 को। तो इंटरनल फोर्स जो डेवलप हो रहा है पैरेलल टू द सरफेस, दैट इज 10 to the power 4 न्यूटन्स। एंड बिकॉज दिस फोर्स इज पैरेलल टू द सरफेस, इस फोर्स की करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा उसको अपन शियर स्ट्रेस बोलेंगे। तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? दिस फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया को पाई इंटू डायमीटर का स्क्वायर, डायमीटर इज 0.05, इसका स्क्वायर बाय 4, ये लिख सकते हैं। तो ये शियर स्ट्रेस की वैल्यू होगी, राइट। इसको सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा। ये अप्रोक्सीमेटली 5 इंटू 10 to the power 6 के इक्वल आ रहा है न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो दिस इज द आंसर फॉर ए पार्ट। अभी देखो बी पार्ट में क्या पूछा है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द एंड ऑफ द रॉड। तो अगर मान लो ये रॉड ओरिजिनली ऐसा था और वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसके एंड का डिफ्लेक्शन अगर अपन y मान लेते तो दिस y अपॉन दिस l ये shear strain के इक्वल होगा, एंड shear stress अपॉन shear strain, shear stress मतलब 5 into 10 to the power 6 अपॉन y by l, इसको अपन मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या फिर shear मॉड्यूलस के इक्वल कर सकते हैं, which is 4 into 10 to the power 10। l की वैल्यू 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसको 0.05 लिख दो, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। y की वैल्यू 6.25 इंटू 10 to the power -6 मीटर्स आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, 2 persons pull a rope towards themselves, each person exerts a force of 100 newtons on the rope। देखो ऐसे सिचुएशन में रोप के अंदर टेंशन फोर्स कैसे निकालेंगे? सबसे कॉमन गलत आंसर्स जो होते हैं इसमें वो होता है टेंशन फोर्स इज 0 क्योंकि दोनों साइड से कैंसिल हो गया, या फिर टेंशन फोर्स इज 100 + 100 200। ये दोनों ही आंसर्स गलत है। टेंशन फोर्स निकालने का तरीका क्या होता है? टेंशन फोर्स इज एन इंटरनल फोर्स जो रोप के हर एक पार्ट एक दूसरे पे लगा रहे होंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए किसी भी पॉइंट पे रोप को दो पार्ट्स में कट कर दो और किसी भी एक पार्ट का एफवीडी बना दो। तो अगर मान लो अपन लेफ्ट पार्ट का एफवीडी बना दे तो 100 न्यूटन्स लेफ्ट में लग रहा है और इस पे राइट वाला पार्ट राइट की तरफ टेंशन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, और ये दोनों ही पार्ट्स इक्विलिब्रियम पे रहेंगे क्योंकि ओरिजिनली पूरा का पूरा रोप भी इक्विलिब्रियम पे था। तो यहाँ से अपन देख पा रहे टेंशन इज एक्चुअली इक्वल्स टू 100 न्यूटन्स, राइट। और क्या पूछा है सवाल में? फाइंड द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द रोप इफ इट एक्सटेंड्स बाय 1 सेंटीमीटर। एक्सटेंशन 1 सेंटीमीटर मतलब 0.01 मीटर्स गिवन है, ओरिजिनल लेंथ 2 मीटर्स दिया हुआ, तो इससे अपन स्ट्रेन निकाल लेंगे 0.01/2, और क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 2 into 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर। तो इंटरनल टेंसाइल फोर्स और क्रॉस सेक्शनल एरिया, इससे अपन स्ट्रेस निकाल लेंगे। स्ट्रेस विल बी टेंशन अपॉन एरिया 2 into 10 to the power -4, तो यहाँ जाके 10 to the power 4 हो जाएगा। तो यंग्स मॉड्यूलस कितना होगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस का न्यूमरेटर 10 to the power 6 बन जाएगा अपॉन 2, एंड स्ट्रेन इज 0.01/2। सो यंग्स मॉड्यूलस 10 to the power 8 SI यूनिट्स मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये फाइनल आंसर आ रहा है ए पार्ट का। ओके, अभी इसका बी पार्ट देखो। A steel rod of cross-sectional area 4 centimeter square and length 2 meters shrinks by 0.1 centimeter as the temperature decreases in night। मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होने पर
उसका जो ओरिजिनल लेंथ है वो 0.1 सेंटीमीटर से कम हो रहा होगा। बट ऐसे रॉड को अगर मान लो मैं दोनों साइड से क्लैम्प कर दूं, राइट, रॉड का ओरिजिनल लेंथ 2 मीटर्स दिया हुआ, और इस रॉड को अगर अपन कूल डाउन करते हैं तो कूल होने पर ये ओरिजिनली 0.1 सेंटीमीटर से श्रिंक होने की टेंडेंसी रख रहा था, राइट। तो जहाँ पे हमने इसको क्लैम्प किया वो एक तरीके से इसको अपने नेचुरल लेंथ से 0.1 सेंटीमीटर से एक्सटेंड कर रहा है। तो स्ट्रेन के कैलकुलेशन में ये जो डेल्टा एल अपॉन एल होता है, दिस डेल्टा एल इज द डिविएशन फ्रॉम द नेचुरल लेंथ एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो नाइट आवर्स में जब टेम्परेचर फॉल होगा तो उस लोअर टेम्परेचर पे जो उसका नेचुरल लेंथ होगा वो 2 माइनस 0.1 सेंटीमीटर होगा। एक्चुअली इट्स 2 मीटर्स माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो इसको तो अप्रोक्सीमेटली अपन 2 मीटर्स ही मान सकते। और नेचुरल लेंथ से ये 0.1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर रहा है एक तरीके से। वॉल्स नहीं होते तो वो श्रिंक कर जाता, और वॉल्स उसको श्रिंक होने से प्रिवेंट कर रहा है। तो एक तरीके से अपन मान सकते हैं एक्सटेंशन विल बी 0.1 सेंटीमीटर विच इज 0.001 मीटर्स, राइट। तो यहाँ से स्ट्रेन की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्ट्रेन विल बी 0.001 अपॉन 2। और क्या पूछा है? फाइंड द टेंशन डेवलप्ड। तो स्ट्रेन से अपन स्ट्रेस निकाल सकते हैं। स्ट्रेस क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यंग्स मॉड्यूलस होता है। सो स्ट्रेस विल बी स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस 1.9 इंटू 10 टू द पावर 11 दिया हुआ है। और एक बार स्ट्रेस मिल गया तो अपन टेंशन भी निकाल सकते हैं। टेंशन विल बी स्ट्रेस इनटू एरिया। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 दिया हुआ, तो 0.001 अपॉन 2 इंटू 1.9 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पर टेंशन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 3800 न्यूटन्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 4. A rod AD consists of 3 segments AB, BC and CD. Joined together. It is hanging vertically from a fixed support A. तो यहाँ पे 3 सेगमेंट्स को ड्रॉ कर दो, AB, B to C and C to D. और सपोर्ट A पे दिया हुआ, A पे वो हैंग कर रहा है। The lengths of the segments are 0.1 meter, 0.2 meters and 0.15 meters. Cross sectional area सब जगह यूनिफॉर्म दिया हुआ है, 10 to the power -4 meter square. A weight of 10 kg is hung from point D. यहाँ पे 10 kg का मास रखा हुआ है. Calculate the displacements of point D if Young's modulus of AB is 2.5 into 10 to the power 10 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। BC का यंग्स मॉड्यूलस 10 टू द पावर 10 दिया हुआ, एंड CD का अगेन 10 टू द पावर 10 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। हमें पॉइंट D का डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो देखो यहाँ पे तीनों ही वायर्स एक्सटेंड हो रहे होंगे। ऊपर वाले वायर का अगर मैं एक्सटेंशन डेल्टा L1 मान लूं, बीच वाले वायर का डेल्टा L2 और नीचे वाले का डेल्टा L3, तो पॉइंट D का जो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट है वो तीनों एक्सटेंशंस के एडिशन के इक्वल होगा, राइट। और एक्सटेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? FL अपॉन AY। F मतलब इंटरनल टेंसाइल फोर्स। तो जो टॉप मोस्ट वायर AB है, इसके अंदर टेंसाइल फोर्स कितना होगा? यहाँ पे वायर्स का कुछ भी मास नहीं दिया हुआ, वायर्स आर मासलेस, राइट। तो तीनों ही वायर्स में अपन टेंशन सेम मान सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस वेट। तो F की वैल्यू 10 इंटू 10 100 न्यूटन्स के इक्वल होगी। तो फर्स्ट वायर में जो एक्सटेंशन है वो F इंटू L 0.1 अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉड्यूलस के इक्वल होगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर 10। सेकेंड वायर के अंदर जो एक्सटेंशन है वो भी हम निकाल सकते हैं 100 इंटू 0.2 अपॉन 10 टू द पावर -4 इंटू यंग्स मॉड्यूलस। एंड थर्ड वायर का ये एक्सटेंशन होगा 100 इंटू लेंथ 0.15 अपॉन एरिया इज सेम 10 टू द पावर -4 इंटू यंग्स मॉड्यूलस अगेन 10 टू द पावर 10। तो डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3 इन सबको कैलकुलेट करके ऐड कर दो, तो हमें
टोटल डिस्प्लेसमेंट का आंसर मिल जाएगा 24 into 10 to the power minus 6 meters. Okay. Question number 5. One end of a metal wire is fixed to a ceiling and a load of 2 kg hangs from the other end. A similar wire is attached to the bottom of the load and another load of 1 kg hangs from this lower one. तो देखो इस सिचुएशन को ड्रॉ कर लेते हैं. एक मेटल वायर के एंड को सीलिंग से फिक्स किया हुआ है और यहाँ से 2 kg का लोड हैंग कर, और एक और सिमिलर वायर, सेम वायर, इसको इस लोड के लोअर एंड से अटैच किया और इसके भी नीचे एक 1 kg का लोड लगा इस तरीके से. फाइंड द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इन बोथ द वायर्स. दोनों वायर्स का एरिया दिया हुआ है एंड यंग्स मॉड्यूलस भी सेम है दोनों के लिए, 2 into 10 to the power 11. एरिया और यंग्स मॉड्यूलस ये दोनों गिवन है और दोनों में हमें स्ट्रेन्स निकालना है. तो इसको वायर 1 मान लो, इसको वायर 2. वायर 1 के अंदर जो टेंसाइल फोर्स होगा वो इन दोनों वेट्स को बैलेंस कर रहा होगा. यहाँ पे अगर अपन वायर को कट करके देखते तो इसके अंदर टेंशन फोर्स 2 + 1 3 into G 30 न्यूटन के इक्वल आ रहा है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है. तो स्ट्रेस कितना होगा? स्ट्रेस इन वायर 1 इज 30 अपॉन एरिया. एरिया 0.005 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इंटू 10 to the power -4 कर दो. ये स्ट्रेस होगा. और स्ट्रेन कैसे निकालेंगे? स्ट्रेन विल बी इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यंग्स मॉड्यूलस होता है. तो स्ट्रेन को अपन स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूलस लिख सकते हैं, राइट? So 30 upon 0.05 into 10 to the power -4 upon Young's modulus, which is 2 into 10 to the power 11. तो इसको सॉल्व करने पर वायर 1 के अंदर स्ट्रेन मिल जाएगा 3 into 10 to the power -4 और इसका कुछ भी यूनिट्स नहीं होगा, राइट? वैसे ही सेकेंड वायर के अंदर जो टेंशन होगा वो सिर्फ 10 न्यूटन होगा और अगर टेंशन 1/3 हो गया और बाकी सारे पैरामीटर सेम है, राइट? लेंथ, एरिया, यंग्स मॉड्यूलस. तो अगर टेंशन 1/3 हो गया तो स्ट्रेन भी 1/3 हो गया होगा. तो सेकेंड वायर में स्ट्रेन को 10 to the power -4 लिख सकते हैं डायरेक्टली. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. 2 blocks of masses 1 kg and 2 kg are connected by a metal wire going over a smoother pulley as shown in the figure. The breaking stress of the metal is 2 into 10 to the power 9 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर. ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस ये दिया हुआ है. व्हाट इज द मिनिमम एरिया ऑफ द वायर यूज्ड इफ इट इज नॉट टू ब्रेक? स्ट्रेस इज इंटरनल टेंसाइल फोर्स अपॉन एरिया. तो स्ट्रेस पता है और हमें एरिया निकालना है. तो एरिया निकालने के लिए टेंशन पता होना चाहिए एंड टेंशन पता होने के लिए हम लोग लॉज ऑफ मोशन का नॉलेज अप्लाई कर सकते हैं. 2 मास सिस्टम के लिए ये वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए. द टेंशन फोर्स फॉर 2 मास सिस्टम इज गिवन बाय 2m1 m2 g अपॉन m1 + m2. और इनकेस अगर याद नहीं हो तो फिर दोनों ब्लॉक्स का एफबीडी बना के डिराइव कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पे वैल्यूज डाल दो. m1 + m2 मतलब 1 + 2 3. सो टेंशन फोर्स 40/3 न्यूटन के इक्वल आ रहा है. तो यहाँ से एरिया की वैल्यू टेंशन अपॉन सिग्मा मैक्स ये हो जाएगी 40/3 अपॉन 2 into 10 to the power 9. ये मिनिमम एरिया होगा. इसकी वैल्यू 20/3 into 10 to the power -9 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगी, राइट? क्वेश्चन नंबर 7. Consider the situation shown in the figure. The force F is equals to m2g/2 if the area of cross section of the string is A and Young's modulus is Y. Find the strain developed. तो सबसे पहले तो टेंसाइल फोर्स निकाल लेते. टेंसाइल फोर्स निकालने के लिए इन दोनों ब्लॉक्स को एक सिंगल सिस्टम मान लो इस तरीके से. यहाँ पे नीचे m2g लग रहा है और ये फोर्स की वैल्यू m2g/2 है. तो ये दोनों ब्लॉक्स इस तरफ मूव करेंगे. दिस इज द लाइन ऑफ देयर मोशन
और दोनों ब्लॉक्स को सिंगल सिस्टम मानने का फायदा क्या होगा, इनके बीच में जो टेंशन फोर्स होगा वो इंटरनल बन जाएगा, राइट। सो इन दोनों ब्लॉक्स को जो फोर्स ड्राइव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज m2g, एंड दिस m2g/2 दिस इज ओपोजिंग द मोशन। तो नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन कितना होगा, m2g माइनस m2g/2, और इसको अपन टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल लिख सकते। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, m2g अपॉन 2 टाइम्स m1 प्लस m2, ये एक्सेलरेशन आ रहा है। और एक्सेलरेशन मिल गया तो टेंशन भी मिल जाएगा। किसी एक सिंगल ब्लॉक का एफवीडी बना दो, अगर अपन m1 का एफवीडी बनाते तो यहाँ पे टेंशन लग रहा है, यहाँ पे m2g/2 लग रहा है, राइट। और इसका एक्सेलरेशन a राइट की तरफ होगा, तो इसका फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा, t माइनस m2g/2 इक्वल्स टू m1a, और a मतलब m2g अपॉन 2 टाइम्स m1 प्लस m2। दैट मीन्स टेंशन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, दोनों में से m2g/2 कॉमन ले लो, ये वाला टर्म भी राइट में जाके ऐड होने वाला है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस m1g, सॉरी g तो हमने कॉमन ले लिया था, सो m प्लस m1 अपॉन ये 2 बाहर था और ये ब्रैकेट में था, तो m1 अपॉन m1 प्लस m2 ये बच जाएगा। सो सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, m2g अपॉन 2, न्यूमरेटर में 2m1 प्लस m2 ये बचेगा, एंड डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 ये बचेगा। तो ये टेंशन फोर्स की फाइनल वैल्यू होगी। टेंशन मिल गया तो स्ट्रेस कितना होगा, टेंशन अपॉन एरिया, और स्ट्रेस मिल गया तो स्ट्रेन कितना होगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज यंग्स मॉड्यूलस, सो स्ट्रेन विल बी स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूलस। तो जो भी हमें टेंशन फोर्स मिला था इसको ay से डिवाइड कर दो, वो हमें स्ट्रेन दे देगा, राइट। सो स्ट्रेन विल बी m2g अपॉन 2ay into 2m1 plus m2 upon m1 plus m2. This is our final answer, right? Next सवाल देखिए अभी, क्वेश्चन नंबर 8. Two wires shown in the figure are made of same material which has a breaking stress of 8 into 10 to the power 8 newtons per meter square. The cross-sectional area of the upper wire is this much, 0.006, and that of the lower wire is 0.003 centimeter square. M1 का मास दिया हुआ है, M2 का मास दिया हुआ है, और हैंगर लाइट है, massless. Find the maximum load that can be put on the hanger without breaking the wire. So देखो, बिना किसी मास के अगर अपन टेंशन फोर्स कैलकुलेट करते, M1 M2 का मास दिया हुआ है, राइट। मान लेते यहाँ पे अपन ने x मास अटैच कर दी, इसको वायर 2 मान लो, इसको वायर 1 मान लो, तो वायर 1 के अंदर जो टेंशन फोर्स डेवलप होगा वो m1 प्लस x इंटू जी डेवलप होगा, एंड वायर 2 में m1 प्लस m2 प्लस x टाइम्स जी। वायर 2 इन तीनों के मासेस को बेयर कर रहा होगा, राइट। करस्पॉन्डिंग टू दिस टेंशन, स्ट्रेस कितना होगा वायर 1 में, वायर 1 का टेंशन अपॉन वायर 1 का एरिया। वायर 1 का एरिया 0.006 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, और इसमें ऑलरेडी 3 जीरोस है, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर इज 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, राइट। और 3 जीरोस और आ जाएंगे तो 10 टू द पावर -7 बन जाएगा, ये 6 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर। ये वायर 1 के अंदर स्ट्रेस होगा। यहाँ पे m1 की वैल्यू भी डाल दो, 10 प्लस x इंटू 10 अपॉन 6 इंटू 10 टू द पावर -7, एंड वैसे ही वायर 2 के अंदर जो स्ट्रेस होगा m1 प्लस m2 मतलब 30 प्लस x इंटू 10 इंटू जी अपॉन वायर 2 का एरिया विच इज 3 इंटू 10 टू द पावर -7। मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू भी गिवन है विच इज 8 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। और इन दोनों ही वायर्स के अंदर जो स्ट्रेस है वो इसको
इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। तो अगर मान लो वर्स्ट के सिनेरियो में इन दोनों के स्ट्रेसेस को अगर अपन ब्रेकिंग स्ट्रेस के इक्वल कर दें तो उसके करस्पॉन्डिंग जो लोड आएगा उस लोड पे वो पर्टिकुलर वायर ब्रेक हो जाएगी, राइट। और इन दोनों केसेस में से जो कम वाला लोड होगा वो हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट केस में जब हम सिग्मा 1 को इस ब्रेकिंग स्ट्रेस के इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 इंटू 10 टू द पावर 8 इक्वल्स टू 10 प्लस एक्स अपॉन 6 इंटू 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8 कैंसिल, एंड इससे x की वैल्यू क्या आ रही है, 8 इंटू 6 48, 48 माइनस 10 38। मतलब हैंगर में जब 38 kg लोड डालेंगे तब जाके ऊपर वाला वायर ब्रेक होगा, और वैसे ही नीचे वाले वायर को ब्रेक करवाने के लिए 30 प्लस एक्स अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 8, इसको किससे इक्वेट करेंगे, 8 इंटू 10 टू द पावर 8, तो 10 टू द पावर 8 कैंसिल, और यहां से 30 प्लस एक्स 24 के इक्वल आ रहा है। ओके देखो, इस क्वेश्चन में हमने एरियाज को इंटरचेंज कर दिया था। एक्चुअल में जो नीचे वाला वायर है, लोअर वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 3 दिया हुआ है, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो इसको अगर अपन 3 के इक्वल करते और ये वाला एरिया 6 दिया, राइट। तो फर्स्ट केस में x की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं इसको 3 के इक्वल करता हूँ तो 24 माइनस 10 विच इज 14 kg, एंड सेकेंड केस में ये 6 दिया, तो सेकेंड केस में x की वैल्यू क्या आएगी, 48 माइनस 30 18 kg। दैट मीन्स अगर हैंगर के अंदर 14 kg का लोड होगा तो उस केस में कौन सा वायर ब्रेक होगा, T1 वायर 1 मतलब लोअर वायर ब्रेक होगा, और अगर 18 kg को एक्सीड करेगा तो अपर वायर ब्रेक होगा। दैट मीन्स इन दोनों का मिनिमम अपन 14 kg से एक्सीड नहीं करवा पाएंगे बिकॉज वी डोंट वांट टू ब्रेक एनी वायर, राइट। सो 14 kg विल बी आवर मैक्सिमम लोड। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, a block of weight 10 newtons is fastened to one end of wire of cross sectional area 3 mm square। ये वायर का एक एंड फिक्स्ड है, इसका एरिया 3 mm स्क्वायर गिवन है, और इसके दूसरे एंड पे 10 न्यूटन्स वेट का एक ब्लॉक अटैच्ड है। और देखो वायर को वर्टिकल सर्कल में रोटेट कर रहे हैं ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर्स। तो डायग्राम को चेंज कर देते हैं। अगर वायर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो ऐसा कुछ सिचुएशन होगा। द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द बॉटम ऑफ द सर्कल इज 2 meters per second। यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है। फाइंड द एलोंगेशन ऑफ द वायर व्हेन द ब्लॉक इज एट द बॉटम ऑफ द सर्कल। तो इस सिचुएशन में जो टेंशन फोर्स होगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ब्लॉक का एफबीडी बना दो, ऊपर टेंशन नीचे mg, एंड वर्टिकल डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r। सो फोर्स इक्वेशन क्या होगा, t माइनस mg इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। तो यहाँ से टेंशन फोर्स m इंटू जी, वेट 10 न्यूटन्स दिया हुआ है, दैट मीन्स मास 1 kg होगा, तो 1 इंटू v स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन रेडियस 0.2 मीटर्स। तो यहाँ से टेंशन फोर्स 4 अपॉन 0.2 मतलब 30 न्यूटन्स के इक्वल आ जाएगा टेंशन। सो टेंशन से स्ट्रेस निकाल सकते, स्ट्रेस कितना होगा, टेंशन अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 mm स्क्वायर मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो स्ट्रेस 10 टू द पावर 7 के इक्वल आ रहा है न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉड्यूलस 2 इंटू 10 टू द पावर 11 दिया, राइट। सो स्ट्रेन कितना होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज यंग्स मॉड्यूलस, सो स्ट्रेन इज स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूलस 10 टू द पावर 7 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर 11, एंड एलोंगेशन को अपन स्ट्रेन इंटू लेंथ लिख सकते हैं। वायर का लेंथ कितना दिया हुआ है,
इसका रेडियस जो होगा वही वायर का लेंथ होगा, रेडियस मतलब 0.2 मीटर्स, तो इंटू 0.2, तो इसको सॉल्व करने पर हमें एक्सटेंशन मिल जाएगा 10⁻⁻5 meters, right? Question number 10. A copper wire of negligible mass, 1 meter in length and cross-sectional area 10⁻⁻6 is kept on a smooth horizontal table with one end fixed. A ball of mass 1 kg is attached to the other end. The wire and the ball are rotating with angular speed 20 radians per second. इस angular speed में elongation 10⁻⁻3 दिया हुआ। टेंशन फोर्स जो होगा वायर के अंदर, ये सिचुएशन है। इस केस में हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है। इसको स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, बॉल का मास दिया हुआ है 1 kg और हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट कर रहा है। तो ये जो टेंशन फोर्स है, ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, m⁻²L। तो एलोंगेशन को अपन FL/AY m⁻²L into L/AY लिख सकते हैं। So elongation is m⁻²L² AY, और ये elongation फर्स्ट केस में 10⁻⁻3 के इक्वल दिया हुआ। If on increasing the angular velocity to 100, the wire breaks down, obtain the breaking stress. So फर्स्ट केस में जो स्ट्रेस होगा वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस के टर्म्स को अगर अपन कलेक्ट कर ले, ये इंटरनल टेंसाइल फोर्स था और ये एरिया था, तो इसको क्लब करके अपन स्ट्रेस बोल सकते हैं। दैट मीन्स एक्सटेंशन इज स्ट्रेस इनटू लेंथ अपॉन यंग्स मॉड्यूलस। फर्स्ट केस में ये एक्सटेंशन 10⁻⁻3 दिया, राइट? अच्छा देखो, इस सवाल के एक्चुअली दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो हमें यंग्स मॉड्यूलस निकालना है, तो यंग्स मॉड्यूलस तो इसी फॉर्मूला से आ जाएगा जो यहाँ पे अपन ने लिखा हुआ, ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पे देखो हमें क्या क्या पैरामीटर्स पता है। मास पता है 1 kg, ओमेगा भी गिवन है 20 रेडियंस पर सेकेंड, तो ω² 20² बन जाएगा। लेंथ 1 मीटर, लेंथ स्क्वायर इज 1, एरिया 10⁻⁻6 दिया है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू मिल जाएगी 4 × 10⁻11 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर, राइट? और एक बार अगर हमें यंग्स मॉड्यूलस मिल गया तो इसको अपन सेकेंड सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। सेकेंड सिचुएशन में जब एंगुलर वेलोसिटी 100 होगी तो उस समय टेंशन m विच इज 1 kg into ω² into L, ये टेंशन होगी, एंड इस टेंशन अपॉन एरिया, एरिया 10⁻⁻6 दिया हुआ, ये ब्रेकिंग स्ट्रेस हो जाएगा सिग्मा मैक्स, क्योंकि इस स्ट्रेस पे वायर ब्रेक कर रहा है, राइट? तो सॉल्व करने पर ये कितना आ जाएगा, 100 का स्क्वायर मतलब 10⁴ अपॉन 10⁻⁻6, so this is 10⁻10 newtons per meter square. Okay. So guys, this completes our discussion of all the questions from this set. Keep up the hard work by practicing many such questions from the other sets as well. Also, please do subscribe to the channel Calibrate Physics. You all can also like, share and comment below, and hit on the bell icon to get notifications of many such videos in the future. Thank you all for watching this video and take very good care of yourselves.